I was saying that suddenly boycotting or banning Yeah, the apps and goods. Yeah. May I continue, sir? Sure. yeah. Please. Continue. Yes. Sir, I was saying that suddenly boycotting and banning the goods of China is will become a problem for the people in India who are poor, because still we are not having a large manufacturing country. So the prices which are so the goods which are made in India will be of higher prices. So it will not be affordable for the poor people. There are a lot of people in India who are below poverty line. So to meet their needs, to fulfill their needs also, first of all we have to be developed as much that develop as much that and increase our manufacturing, that we can compete with the goods of the China, the prices of the Chinese goods, which is affordable to this suddenly doing anything, boycotting, banning will be only beneficial for the rich people, but for the poor it will be not good, and the people will starve, and there will because their expenses will increase. And their wages is less, so wages income is less, and their expenses will increase. So they will go and they will survive for their life, and indirectly it will be bad for our country only. So Sangam, what I think about, you said no that poor are just going to be affected from this. So as per my view, I don't know about others, तो मुझे ऐसा लगता है यार कि जो है पुअर्स को तो यार ज्यादा इफेक्ट पड़ना ही नहीं चाहिए. जो इंसान गरीब है और उसने कभी ऐसा इतने महंगे फोन चलाए ही नहीं है, तो अगर वो बंद भी हो जाता है तो पुअर्स को क्या इफेक्ट पड़ने वाला है. और रही बात कि अगर ये जो क्या कहते हैं शॉप्स हैं चाइना की, या फिर तो वहां तुम यार गरीब को तो देखोगे ही नहीं काम करते हुए. वो तो बेचारा लाइक ही इज यू सी हिम ऑन समवेयर कूड़े वीड़े, मतलब वो समझ सकते हैं ना, यू वुड हैव सीन दैट. तो मुझे नहीं लगता कि जो है पुअर्स को कोई इतना ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है. पड़ेगा किसको? मिडिल क्लास को पड़ेगा. बिकॉज अगर आई टेक वन एग्जाम्पल, आई जस्ट गिव अ गुड एग्जाम्पल कि अगर यू नो राइट नाउ इंडिया में क्या है कि चाइना इज बेस्ड अपॉन मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडिया इज बेस्ड अपॉन सॉफ्टवेयर. इट इज टोटली बेस्ड अपॉन दैट. तो अगर आप बैंगलोर साइड जाओगे वहां पे यस व्हाट software sector, no? Services sector, ma'am. Services sector. Okay, then Yes, it sir. comes only service sector only. So 50% of our economy is sector, sir. just contributed Yeah. by the service sector. Yes, sir. Yeah, So what good question. happens Yes. ki when you are just going to go Yes. So when you are just going to go like I'll just give an example कि अगर आप बैंगलोर में जाते हो और वहाँ पे देखोगे, you are just going to find कि इतनी सारी companies हैं, and they all are just based upon this software and all that. So the thing is कि ऐसा नहीं है कि कंपनीज है तो वो सिर्फ इंडिया की है. बाहर की कंपनीज यहाँ पे आकर दे हैव बिल्ड अप देयर कंपनीज एंड दे हैव हायर्ड द इंडियंस. सो इंडियंस काम तो कर रहे हैं बट वो बाहर के लिए काम कर रहे हैं. What happened? You know why they are recently going Germany to has the most recently Germany has constructed school. Okay, one by one. Sorry, I'm not able to listen both of you. Sangam, please continue. Yes, I want to say that Neha ma'am is saying the people get education from India and go to other countries. This is because of the infrastructure No, sorry. problems in it. I'm not saying that, but okay, you just carry on. I'll just join you afterwards. Carry on. Okay, carry on. I want to put this point. That Indians get education in our country, but due to lack of infrastructure. This is because due to the bad road facilities, transport facilities, and the working and the labor. The labor are also not very much skillful.
So here the outsiders cannot invest or establish their factories or companies because they are not able to resources are there, but the labor and the skillful people are not very much available in India, and infrastructure is also not so good. You So guys are going to find very that's cheap why labor in India. the people. I guess we guys are diverting What? from the point. Yeah, You know, world's So, company, they all are attracted towards India just because of this cheap labor, and India is a diverse country. You are just going to find many things. So yeah, like ki agar but the laborers are not skilled labor, and yeah, if they are not get skilled that labor, I'll how they're okay. uh, Yes. how Skilled laborers are not how there. they will be able to meet the that is profit terms. So Their production will increase, but the productivity will not be good. so that's what the And the people government is working in and the that. good and skilled, Okay. Sangam, the talented and skilled people go outside because of the they get their labor paid well, because they get higher wages But as compared to India, but the thing is कि वैसे देखो मैं एक बात कहना चाहती थी आई नो शायद ये टॉपिक से ना हो बट इस टाइम भी इंडिया इज अंडर द स्लेव ओनली अगर इंडिया जो है यहाँ के पीपल जो हैं अगर आप बाहर जाके जॉब कर रहे हैं दे आर बीइंग पेड जिस लाइक बाहर क्या होता है कि इंडिया में आपको मंथली वाइज पेमेंट मिलती है बट बाहर अगर आप जाओगे आपको मिलेगा आज मतलब टाइम के वाइज कि आप 1 घंटे काम करोगे तो आपको पेमेंट मिलेगी तो वहां अगर आप वहां इंडियंस पता है अगर अमेरिका में प्राइवेट सेक्टर में तो ऐसे ही होता है ना 5 घंटे काम करते हैं इंडिया में भी प्राइवेट सेक्टर में ऐसे ही होता है ना कि जितना काम करेंगे उतना ही पैसा मिलेगा अगर ओवर टाइम करेंगे तो उसमें पैसा उड़े तो मिलता है तो वो टाइम everywhere you are not going to see this everywhere guys wait a second so I guess we are being diverted from the topic हम चाइना पे थे अब हम इंडिया के अंदर में आ गए उसकी सर्विसेज में आ गए हम बात कर रहे थे हमारा टॉपिक था कि इज चाइना रियल थ्रेट टू इंडिया एंड हम इंडिया के सर्विस सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं okay guys let me give some points regarding China की जो स्ट्रेंथ है चाइना का उसके बाद हम बात कर लेंगे नहीं वो है मैं क्लोज नहीं कर रहा हूँ मैं चाइना की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बता रहा हूँ उसके बाद आप लोग डिस्कस कर सकते हैं कि उसके आधार पे कि चाइना इज रियली चाइना थ्रेट टू अस और उसके अगर वो थ्रेट है तो उसके भी कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं तो हम लोग उस पर डिस्कस कर सकते हैं ओके फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट चाइना इज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड एंड एज पर द लैंड मास इट इज द 4th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इट इज ऑलमोस्ट 3 times द साइज ऑफ इंडिया एंड देन इस इकोनॉमी अगर हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो ये वर्ल्ड की 2nd नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी है एज पर जीडीपी $7 ट्रिलियन इकोनॉमी अमेरिका सबसे आगे है $21 ट्रिलियन इकोनॉमी और इंडिया इज वेरी बिहाइंड इंडिया इज 5th इन टर्म्स ऑफ जीडीपी $2.9 ट्रिलियन and as per PPP and purchase power parity India is 3rd okay then we can say कि चाइना ने जो अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे उनका ऐसा था कि जब वो चाइना शुरू में 49 में ये लोग इनकी कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में आई इन्होंने सबसे पहले 1 चाइना पॉलिसी अपनाई उसके बाद इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए इन्होंने क्या किया कम्युनिज्म को पहले अपनाने की कोशिश की माओ जेडोंग थे इनके लीडर 58 से 60 में एक इनकी पॉलिसी आई थी ग्रेट लीप फॉरवर्ड क्योंकि ये चाइना क्या करता था यूएसएसआर को आउटपेस करना चाहता था लेकिन उसमें उनको नुकसान हो गया होता तो काफी वहां पर अपने की घरेलू टेंशन थी तो इसीलिए बोलते हैं कि 62 का वार शायद इसीलिए उसने करवाया उसके बाद फिर 66 से 76 तक एक उनकी ग्रेट रेवोल्यूशन नाम से उनका काफी लंबा कार्यक्रम चला लेकिन वो भी फेल हो गया बहुत सारे लोग फेमिन से मर गए और आपके काफी लोगों का जो है पलायन कहाँ से हो गया सिटी से गांव की तरफ हो गया जबकि और जगह पर उल्टा हो रहा था उसके आसपास इकोनॉमी थी जापान उनके शहर से गांव की तरफ जा रही थी गांव से शहर की तरफ जा रही थी तो उसके बाद फिर क्या किया 78 में आप इन द पावर उसने उसके बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू किए उसके बाद फिर वो क्या हो गया जब उन्होंने अपनी इकोनॉमी खोल दी लेकिन चाइना के साथ एक ऐसा है कि चाइना को जब सुटेबल लगता है अपनी इकोनॉमी वो कैपिटलिज्म ही कर लेते हैं और उसके बाद वो क्या करते हैं दोबारा से फिर अपने हिसाब से चलाते हैं इसको बोलते हैं कमांड इकोनॉमी मतलब उनका जैसा मन किया वैसा और चाइना क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट है इसलिए जो वर्ल्ड की जो मार्केट है उसको अनदेखा नहीं कर सकते
इस तरह से उनका चल रहा है। और चाइना की एक पॉलिसी है कि चाइना में चाहे आर्मी हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे कोई भी प्राइवेट कंपनी हो, उसके अंदर उनके बाशिंदे यानी जो कि कम्युनिस्ट पार्टी का एक पक्का कोई रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो चाइना में आप जो भी कंपनी है, जितनी भी कंपनियां इनकी, बेशक वो प्राइवेट है देखने में, लेकिन वो अल्टीमेटली उनका कनेक्शन गवर्नमेंट के साथ है। और उनके लिए एक मतलब डिसीजन लेना बहुत आसान है, क्योंकि उनका जो राष्ट्रपति है ही उसने काफी सारे मुखौटे पहन रखे हैं। वो ओवरऑल देश का राष्ट्रपति है, वो चाइनीज कंपनी का वो क्या है, चेयरमैन भी है। ही इज द चीफ मजिस्ट्रेट ऑफ चीफ मतलब सीजीआई बोल सकते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ चाइना वही है। एग्जीक्यूटिव का सबसे सीनियर वही है, पॉलिटिकल में भी वही है। तो उनके लिए वहां पर कोई भी बोल्ड डिसीजन लेना आसान है, सबसे बड़ी बात। और चाइना ने इतने सालों में जो तरक्की किया, उसका बिल्डअप उसने क्या किया, उसने सबसे बड़ी बात उसने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। किसके लिए बनाया? खुद के लिए बनाया उसने। इंफ्रास्ट्रक्चर अपने देश में डेवलप किया है। उसके बाद उसने अपने आसपास के इलाकों में, जैसे उसने बीआरआई और सीपीसी इनिशिएटिव लगाया हुआ है। उसके अलावा उसने लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में, अफ्रीकन कंट्रीज में उसने अपने लिए कच्चा माल, रॉ मटेरियल उसने सुनिश्चित करने के लिए और ऑयल मार्केट के ऑल्टरनेटिव ढूंढने के लिए उसने क्या किया, वहां पर इन्वेस्ट किया हुआ है। तो वो उसका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। अभी इंडिया वहां तक नहीं पहुंचा है। उन्होंने अपने यहाँ पर बेसिस बना लिए, अपनी क्या मिलिट्री बेसिस तक बना रखी है उन्होंने, ताकि कल परसों किसी कन्फ्रंटेशन में उनको फायदा हो। तो इस तरह से उन्होंने अपना कर रखा है। और चाइना के साथ एक बात यह है कि चाइना के बारे में फेमस है कि चाइना जब भी इकोनॉमिकली प्रॉस्पर होता है तो चाइना क्या करता है, अपना दादागिरी, इट बिकम्स असर्टिव होना शुरू होता है, जैसा कि अभी हो रहा है। क्योंकि चाइना का बहुत वार चल रहा है। साउथ चाइना सी में जो कॉन्फ्लिक्ट को लेकर उसका बहुत देशों के साथ उसका झगड़ा है। उसका जापान के साथ झगड़ा है, उसका ताइवान तो उसके साथ है ही है, आपका फिलीपींस है, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, सभी के साथ उसका कुछ ना झगड़ा है। उसके अलावा इंडिया के साथ उसका अपने कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आपको पता है। उसके अलावा उसका क्या है कि चाइना की जो करेंसी है, इस मार्केट डिटरमिनिंग करेंसी बोलते हैं इसको, ठीक है। क्योंकि वर्ल्ड की सबसे बड़ी सेकंड बड़ी इकोनॉमी है, तो ये अपनी मर्जी से डिवैल्यूएशन कर देगा तो फायदा उसी को होगा। क्योंकि उसके इंपोर्ट्स जो इंपोर्ट्स होंगे वो सस्ते पड़ जाएंगे किसी भी देश को, और वहां पर उनका सामान डंप होना शुरू हो जाएगा, उससे उस देश की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचेगा। तो उसने ऐसा ही किया। उसके अलावा वो क्या कर रहा है, लोन्स देकर, बड़े बड़े लॉन्ग टर्म लोन्स देके, जैसे खासकर उसने हमारे देश के आसपास के जो पड़ोसी हैं उनको पकड़ लिया उसने। जैसे उसने बांग्लादेश के साथ कर लिया है, उसने मालदीव के साथ किया हुआ है, श्रीलंका के साथ किया हुआ है। उसने इस तरह से उनको लोन्स दिए कि वो बहुत टाइम तक उनके एंटेंगलमेंट में फंस गए हैं वो लोग। अब उसको तो उसके बाद तो बोले लो आप हमें कुछ स्ट्रेटेजिक लीवरेज दो। जैसे अभी श्रीलंका है, श्रीलंका में क्या कर रहे हैं वो, श्रीलंका में हम्बन पोर्ट है, उसका उन्होंने रिलीज 99 इयर्स के लिए, ठीक है। इसी तरह पाकिस्तान में बॉर्डर पोर्ट डेवलप कर रहे हैं, सब उसी का हिस्सा है उनका। बहुत डिपेंड करता है, तो उसकी डिमांड के हिसाब से ही ऑयल प्राइसेस अप डाउन होंगे। अमेरिका के बाद सबसे बड़ी ऑयल कंजम्पशन इकोनॉमी है। तो इस तरह क्या होगा कि अगर वो जिस तरह से भी ऑयल की डिमांड आते हैं घटाते हैं, उससे ऑयल मार्केट पे बहुत फर्क पड़ रहा है। और इसमें सबका फर्क किसको पड़ता है, इंडिया। Sir, your voice is not audible. सर वीडियो पॉज हो गया है। आपका सर वीडियो इज पॉज्ड। कनेक्शन टूट गया बीच में। Okay, so we can listen you. You Am I can audible? speak. Hi, yes, you are audible. Yes, sir, you are audible. Please continue. Sir. Okay. सर आप गुम हो गए हैं। सर कहाँ गुम हो गए सर? Okay, guys, you can continue now. Maybe there is some network issue with sir. You can continue, please. Okay. कोई और शुरू करेगा कि मैं फिर शुरू करूँ? सर चलिए सर, I want to add something. Sir, China is funding Pakistan. Yeah, China. It's a policy of the China to isolate India from by their activities, by funding it in Pakistan and providing it nuclear tests because they know that
Pakistan is Pakistan somehow want to find Kashmir, so China take the advantage of terror, and the nuclear tests were given by the China to Pakistan to Anjali, what do you somehow think about external markets? How China is like it is a threat to external markets? यार अभी तुमने कुछ बोला नहीं ना? You should also get a chance. it's Actually, आज अंजलि? मैं कुछ ज्यादा prepared To whom नहीं you are हुआ saying? है, but मेरा बहुत मन था आने का ग्रुप में, मेरे Anjali. को सब कुछ Okay. सुनने का। Anjali, you missed that. There are a lot of points still left. बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अभी मिलिट्री के बारे में हमने बात ही नहीं की। हम लोग मिलिट्री के भी देखें तो मिलिट्री पावर भी देखी जाए तो चाइना की बहुत है एज कम्पेयर टू इंडिया, जो कि हमारे लिए आगे चलकर एक बहुत बड़ा थ्रेट आप अपना माइक थोड़ा पास ला सकते हो प्लीज? अभी जो अंजलि वी कांट लिसन। माइक हेलो तेज से बोलो, तेज से यार, तुम लोग एनसीसी कैडेट्स हो, रो नहीं। ओके ओके हेलो प्लीज। आई एम ऑडिबल? यस यू आर ऑडिबल। सो मैं मिलिट्री के लिए बोल रही थी कि मिलिट्री पावर के बारे में हम बात करते हैं कि देखा जाए तो इंडिया से मिलिट्री पावर चाइना की ज्यादा, और जैसे टैंक्स वगैरह और बहुत सारे ऐसे मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट्स उनके पास, चाइना के पास ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू इंडिया, जो कि आगे चल के अगर कभी वॉर वगैरह भी होता है तो वो इंडिया के लिए थोड़ा डेंजरस माना जा सकता है। बस कहानी Sir, खत्म। ओके I'm already told you that मैंने आज we are back in prepared terms नहीं in किया है। defense sector from China. ओके मेरा बहुत मन था आने का। Sir, So should we can't say that we are should back I in defense proceed? sector from China Okay. because we are having a good ties. So we are having good imports or the buyings of defense equipments from France and Russia. So China, we can compete with China in terms of defense sector. We can't say that we are less than China in defense sector. So I only want to add my some information with Anjali. Okay, so I'll just proceed with my next thread, that is how China is actually a threat to external markets, or we can say that other countries, you know, today, right now if you are just going to see that India, like थोड़ा सा मैं हिंदी बोल देती हूँ कि like इंडिया जो है जिस कंट्रीज के साथ बॉर्डर नहीं भी शेयर करता है, तो क्या है कि चाइना की इतनी ज्यादा, मतलब उसने इतने ज्यादा कंट्रीज को लोन दिए हैं या इन्वेस्ट किया है दूसरे कंट्रीज में कि हम लोग बॉर्डर नहीं भी शेयर करते हैं, फिर भी वो हम लोग, हमारा और दूसरे कंट्रीज का डिस्प्यूट हुआ है, मतलब है अभी। तो ऐसा क्या है कि बाय दिस चाइना हैज ऑलवेज ट्राइड टू that word is not coming, मतलब खराब करना कि relations between India and other countries, वो हमेशा से ऐसा it has always tried to do that. So और रही बात बॉर्डर डिस्प्यूट्स की, तो वो चाइना की सिर्फ इंडिया से ही नहीं है, वो तो पूरे कंट्री से, मतलब पूरे नहीं, मेनली मोस्टली कंट्री से है, क्योंकि you can see कि I told you firstly only कि भले ही बॉर्डर 11 कंट्री से चाइना बॉर्डर शेयर करता है, बट डिस्प्यूट उसके 17 कंट्री से हैं। और you know the thing is कि there is a good point if you talk if you are thinking like you have said firstly also about the population. There was an article in the newspaper, I'll tell you the date also, wait, I am having that newspaper, कहाँ चला गया यार, Leave date पहली तारीख के साथ बैठना चाहिए। There was an article on 11 September that the great graying of China, like today maybe कि चाइना जो है वो अपनी पॉपुलेशन की वजह से वो बहुत ज्यादा दूसरों को ऊपर, मतलब अपना हक, मतलब वो बता रहा होगा, पावर अपनी दिखा रहा होगा कि हम लोग के पास बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है और हम लोग उसका परफेक्टली यूज कर रहे हैं, बट
वेरी सून द टाइम विल कम जब इंडिया में जो है, सॉरी व्हेन चाइना में जो है वहाँ की पॉपुलेशन जो है मोस्टली आपको वो ऐसी एज में मिलेंगी जहाँ पे they'll not be in a way to work properly, और मतलब होता नहीं है कि बड़े वाली एज, इट्स लाइक दैट ओनली। सो वो एक ऐसी एज में रहेंगे। but let me have something। अभी उन्होंने चाइना ने अपने one child पॉलिसी अभी छोड़ दी है उन्होंने, और उन्होंने two child पॉलिसी अब शुरू हो गए वो लोग 2013 और समथिंग में छोड़ी थी, बट स्टिल दे आर लाइक दे आर नॉट इन अ वे, इफ दे थिंक दैट कि अगर आपको जो है एक अच्छी लाइफ जीनी है, और देन यू शुड नॉट हैव more than 1 or 2 children। और इसके चक्कर में क्या है कि वहाँ की जो पब्लिक से दे आर नॉट रेडी टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू जॉइन आर्मी जस्ट बिकॉज ऑफ द डेंजर, और सो I think this population is also a threat to China, but अभी नहीं है, future में होगी। Our population is a threat to our India. Our majority of our population is unemployed, but in China this is not the case. चाइना में पॉजिटिवली यूज करते हैं अपनी पॉपुलेशन का, इंडिया में नहीं है। हाँ, I'll agree with you, Sangam। see guys, China is a opaque country। वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं आती है, तो आप लोग बोल सकते हैं कि देश में अभी लोग एम्प्लॉयमेंट में हैं या दिस एंड दैट, जो भी है। जहाँ तक जो आप लोगों को पता है ना, उनका वर्ल्ड वाइड कोई कनेक्शन नहीं है किसी के साथ। मीडिया पे बहुत उनका वर्ल्ड वाइड कोई कनेक्शन नहीं है किसी के साथ। बैड पॉइंट्स तो आपको पता नहीं चलेगा, जो भी खबर आएगी। मैडम थोड़े से पॉइंट और है। तो व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ चाइनीज इकोनॉमी? डू यू नो व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ चाइनीज इकोनॉमी? I don't know, sorry। हाँ, और कोई भी व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ चाइनीज इकोनॉमी? It's that it is so actually you may tell we don't know। it is actually the manufacturing hub of world। सारे वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब ये है। इसकी सबसे ज्यादा जो इकोनॉमी जो ड्राइव करती है पैसा, वो सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग से करती है। तो इसलिए वर्ल्ड में जहाँ भी कोई चीज जा रही है वो चाइना से ही बन के जा रही है। सारी कंपनियों ने वहीं पर आउटसोर्स कर रखा है, क्योंकि लेबर चीप है, गवर्नमेंट की पॉलिसी बहुत अच्छी है, उनकी सस्टेन करके रखा हुआ है उन्होंने। सर वहाँ के जो वहाँ जो इन्वेस्टर्स होते सर, वो खुश नहीं होते, क्योंकि वहाँ की जो चाइना की अपने हिसाब से सब चलाती है, तो उनको वहाँ पे प्रॉफिट तो है, लेकिन जो है अपने हिसाब से वो लोग वहाँ पे काम नहीं कर पाते हैं। अगर सर चाइना से तो काफी सारी कंपनियां पुणे में जल्दी कुछ कंपनी आ चुकी है, कुछ कंपनी जल्दी आने वाली सर। नहीं वो इसलिए है अभी, क्योंकि अभी अमेरिका के साथ उसका डिस्कॉर्ड चल रहा है, ट्रेड एग्रीमेंट। अब आपको पता है अमेरिका वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। अब अमेरिका कुछ बोलता है तो वर्ल्ड उसको फॉलो करता है। तो जब अमेरिका से तनातनी हो रही है तो क्या हो रहा है, और कोविड-19 के कारण से भी चाइना काफी लपेटे में है सभी के, पूरे वर्ल्ड के, इससे उसकी रेपुटेशन खराब हुई है। तो जब अमेरिका समेत जितने भी आपके वेस्टर्न वर्ल्ड के कंट्रीज है, यूके, फ्रांस, जर्मनी, ये सब एक साथ हो गए हैं। तो ये जब कह रहे हैं कि हम इसके साथ ट्रेड हम लोग कम करेंगे या बंद कर देंगे, तो इसका इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए वो सारी कंपनियां वहां से माल समेट के आ रही हैं। इसलिए नहीं है कि चाइना की जो पॉलिसीज है वो खराब है, नहीं, इसलिए नहीं है। वो सिर्फ जो अभी बट सर एक वो है कि सर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के भी तो कुछ रूल्स होते हैं ना, जो कि अगर ऐसे मतलब कोई झटके में तो ऐसा है नहीं कि इंडिया चाहेगी तो वो चाइना की कंपनी को यहाँ से हटा सकती है। वो उन्होंने भी तो कुछ साइन किया, एग्रीमेंट किया था ना। लेकिन कुछ मेजर्स इस तरह से हैं कि WTO में रहते हुए हम कर सकते हैं। एंटी डंपिंग शुल्क, अब एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दो आप, जैसे चाइना का माल इंडिया में ज्यादा आता है, तो अब एंटी डंपिंग लगा दीजिए आप। ओके, अच्छा, आप उनकी जो सरकारी कंपनियां, उनको जो सरकारी ठेके हैं, प्रोक्योरमेंट, उसे आप निकाल दीजिए, उसमें उनको बैन कर दीजिए, है कि नहीं? वो इंडिया में बिजनेस तो कर पाएंगे, लेकिन प्राइवेटली कर पाएंगे, लेकिन सरकार के ठेकों में उनको कोई बिजनेस नहीं मिलेगा। ये भी है एक तरीका। तो बहुत सारी चीजें जैसे इंडिया भी कर रहा है, इंडिया ने एप्स को बैन कर दिया, है नहीं? तो बहुत सारे तरीके हैं तो जिससे कि उसको आप नुकसान पहुंचा सकते हो, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि हम WTO से बंधे हुए हैं, लेकिन हम हमारे गवर्नमेंट के पास भी बहुत तरीके हैं जो से हम कर सकते हैं, जो कि आप नमूना आप देख रहे हो क्या हो रहा है, ओके? और चाइना को सबसे बड़ा झटका लग रहा है उसको, क्योंकि वो उसका जो सबसे बड़ा जो एक्सपोर्ट है, सबसे ज्यादा बड़ा एक्सपोर्ट जो मार्केट है उसकी अमेरिका है। और अमेरिका ने उसके साथ कह दिया कि भैया आपको पता ट्रम्प के बारे में, ट्रम्प इज एन एक्सेंट्रिक पर्सन। अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, अब वो
इस तरह के मतलब चीजें कर रहा है कि जिससे उसको फायदा हो, उस तरह पॉपुलिस्ट मेजर्स बोलते हैं ना, पॉपुलिस्ट अनाउंसमेंट कर रहा है, तो वो है, तो उनका चल रहा है अभी इस तरह से। तो इसीलिए जो आपका देख रहे हैं कि कुछ कंपनियां वहां से छोड़ के आना चाहती हैं, तो वो इसीलिए मतलब एक अनस्टेबिलिटी बन जाएगी थोड़ी सी इकोनॉमिक वर्ल्ड में, इस कारण से है। सर अगर सभी कंपनियां वहां से छोड़ेगी तो सब अमेरिका तो नहीं भागेगी सर, नहीं सब यूरोप भागेगी, मैक्सिमम कंपनी तो इंडिया ही आएगी सर। नहीं, आप कैसे क्योंकि कर उनको सकते हैं? इंडिया में क्यों इंडिया से ही हो रहा है ये बात तो वही मैं तो, समझ इंडिया रहा में क्यों आएगी भाई? अरे ऐसा है क्या कि पूरे दुनिया का जो सारा छोड़ छोड़ के सब इंडिया में ही सबको भरना है? ऐसे थोड़ी होगा। यहाँ की गवर्नमेंट ऐसा खुद ही नहीं निकाल रही है, वो क्या अंदर क्या मतलब दूसरी वो अभी करेगी चाइना की अभी कंपनी। मैं एग्जांपल देता हूँ। अभी शांतनु ने थोड़ी देर पहले कहा था कि मैं लावा का फोन इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन आपको पता है लावा का फोन भी चाइना में बन रहा है, वियतनाम में बन रहा है, मालूम है आपको? इंडिया में नहीं बन रहा है। सर यही कंपनी इंडिया होता की है, है लेकिन सामान बाहर बन रहा है। हाँ, ये मतलब ये क्या करते हैं, लाइक आई विल गिव वन एग्जांपल कि अभी एक कार आई है, नाम पता नहीं मुझे, 7 सीटर्स है और इतनी मस्त मॉडल है उसकी, बट क्या है कि नाम ऐसा रखा गया है कि लगेगा कि किसी लाइक उधर अमेरिका या उस साइड की कंपनी है, बट इनडायरेक्टली क्या है कि चाइना ने जो है वो अमेरिका में जाके या वहां जाके अपनी खुद की कंपनी डेवलप की और वहां से इनडायरेक्टली वो इंपोर्ट करना चाहती है इंडिया में, और चाहती है कि इंडिया को जो है वो लाइक वो ऐसे कवर करे। मतलब ऐसा है कि इंसान समझ नहीं सकता है कि चाइना किस हिसाब से जो है इस टाइम वो इंडिया को कवर अप करना चाहता है। वही जैसे आपने भी बोला था ना, एंटी समथिंग क्या था, एक वर्ड नहीं था जिसमें कि एंटी डंपिंग, हाँ डंपिंग। तो वही ऐसा होता है कि इतना ज्यादा प्रोड्यूस करना कि बाद में जो है वो सारी कंपनीज जो है उन लोग मतलब जब उनका बिकेगा नहीं तो जाहिर सी बात है कि बंद हो जाएंगी, और जब बंद हो जाएंगी तो अपने हिसाब से जो है वो प्राइस बढ़ा देगी चाइना, एंड हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा सिवाय खरीदने के। सब प्रॉफिट यहाँ किसका होता है? सिर्फ चाइना का। तो ये बहुत ही बड़ा लॉस है इंडिया के लिए। तो इसमें जो है गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू कंट्रोल द कंपनीज व्हिच आर जस्ट आपको पता है ना चाइना ने इंडिया में जैसे पेटीएम जैसे ऐप्स जो आप यूज कर रहे हो ना, पेटीएम, बायजूस या जो भी आप लर्निंग ऐप यूज कर रहे हो, पेमेंट ऐप यूज कर रहे हो, सब में चाइना ने 50 to 80% इन्वेस्ट करके रखा है। So all the applications which are has been invested by China. India जो कंपनीज है यहाँ पे हमारे यहाँ, ये तो टाटा या तो बिरला या फिर अंबानी, इनके अलावा कोई बाकी मैन्युफैक्चरर आ नहीं रहा है, बाकी इन्वेस्टर्स है नहीं हमारे पास, इसलिए हमारे पास इन्वेस्ट कौन कर रहा है? चाइना। तो जब किसी को सपोर्ट मिल रहा होता है ना, वो ले लेता है। ऐसी कंडीशन नहीं है सपोर्ट, लेट मी कंप्लीट ओके। जब किसी को सपोर्ट मिल रहा होता है ना, वो ले लेता है। अगर आपको भी कोई सपोर्ट मिल रहा होगा ना मैन्युफैक्चरर की तरफ से कि आपके पास आपकी कंपनी में कोई इन्वेस्ट करने को नहीं है, तो आप वो लोगे सपोर्ट। ओके, तो इन द सेम वे अगर मुझे पता है कि मैं प्लीज कंटिन्यू। यस हाँ, अरे मैं बोल रही थी कि अगर आपको पता है कि अगर आप सपोर्ट इधर से लेते हो दूसरी साइड में आपको गिरा देता है, तो क्या तब भी आप मदद लेना चाहोगे? नो, देयर इज अ क्वेश्चन नो, कि अब इंडिया को पता है कि चाइना के लिए तो क्या तभी चाइना लगता है मिस्टर रतन टाटा, ठीक है, जो पेटीएम है, मिस्टर रतन टाटा ने भी उसमें इन्वेस्ट किया है। वो चाहते तो पूरा नहीं खरीद सकते थे, ही इन्वेस्टेड लेस। चाइना ने इतना क्यों इन्वेस्ट किया? बिकॉज उसे मार्केट में भी जगह बनानी है इंडिया के, वो इंडिया के मार्केट में बैठना चाहता है आगे पूरी तरह से, तो वो इंडिया की इकोनॉमी को पूरी तरह कंट्रोल करना चाहता है। दैट इज द प्रॉब्लम। और जब किसी को हेल्प मिल रही होती है तो वो ले लेता है, वो किसी और समाज के बारे में, क्योंकि यहाँ कोई मॉन्क नहीं बैठा है कि बुद्ध मॉन्क बैठा हो कि भाई मैं दुनिया के बारे में, दुनिया कल्याण के बारे में, देश कल्याण के बारे में सोचूंगा। हम सोचते हैं अपने बारे में, वी आर सेल्फिश। अब क्यों इंडिया यार? I agree with you. you. Take it personally ना, कि अगर आप अपने बारे में सोच रहे हो, अगर आपको इन्वेस्टमेंट मिल रही है, अगर आपको कॉलेज से स्कॉलरशिप मिल रही है, नॉट जस्ट बिकॉज अगर एक 90% वाले बच्चे को नहीं मिल रही है और आपको 50% आए आपको मिल रही है ना, तो आप ले लोगे स्कॉलरशिप, आप नहीं छोड़ने वाले हो। इन सेम बट अगर मुझे पता रहेगा कि बाद में मुझे इससे भी ज्यादा लॉस होने वाला है,
अगर मुझे पता है कि मुझे जितना स्कॉलरशिप मिल रही है बाद में मुझे उससे ज्यादा जो है वो उससे लॉस होगा तो मैं नहीं लूंगी। जो अब यार इन्वेस्टमेंट कोई कंपनी वो होती है ना, इट वुड बी लाइक अच्छा ना कि मान लेते हैं अगर मैंने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया 100 रुपीज की आपकी कंपनी है, मैंने 50% इन्वेस्ट किया, तो अगर आप मेरी कंपनी फ्यूचर में ग्रोथ करती है तो आपका ग्रोथ होगा या नहीं होगा? 50% आपका और भी तो होगा। तो देन इफ यू आर अर्निंग 50 तो आप फ्यूचर में जाके 100 अर्न करोगे, आपको कभी लॉस नहीं होगा, उस कंपनी ओनर को लॉस नहीं होगा। लॉस किसको होगा? पब्लिक को होगा और गवर्नमेंट को होगा, उस ओनर को नहीं होगा, उस पार्टनर को नहीं होगा। सो यू विल थिंक अबाउट योर पार्टनरशिप कि आपको लॉस नहीं हो रहा है। वी आर थिंकिंग आवर एज सेल्फिश ना, वी आर थिंकिंग एज ह्यूमन बीइंग। प्लीज डोंट थिंक डिप्लोमेटिक कि भाई मैं जो बोल रही हूँ या फिर मैं जो दुनिया देश कल्याण के बारे में सोच रही हूँ, ऐसा कोई नहीं सोचता उस वक्त। हाँ संगम आप कुछ बोल रहे थे, प्लीज ठीक है। Okay. Ladies, okay. Let's revert back to the sir, topic. 8 minutes 15 seconds has been left. Okay. 8 minutes 50 seconds. Okay. So, और क्या रह गया? How to cope up with it? How to cope up? Okay, number one thing is we can promote the skilled labor because चाइना ने अपने यहाँ पर स्किल लेबर में काफी इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उनके यहाँ पर स्किल लेबर्स है, तो इंडिया को भी अपने स्किल लेबर्स को बढ़ाना पड़ेगा। नंबर दो, हमारे यहाँ पर किसी भी फील्ड में रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D नहीं हो रही है। चाइना ने बहुत इन्वेस्ट किया है R&D के लिए, उसने अपने यहाँ पर इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, इंग्लिश में मतलब इंग्लिश स्पीकिंग के लिए उसने बहुत इन्वेस्ट किया हुआ है, R&D में बहुत स्पेसिस किया हुआ है। आने वाले सालों में आप देखोगे क्योंकि अगर आप उनके देखोगे रिसर्च पेपर में कल पढ़ रहा था कि उनके साइंस में, टेक्नोलॉजी में उनके रिसर्च पेपर इतने ज्यादा, अमेरिका के पास सबसे ज्यादा, चाइना क्या करता है सबमिट करता है रिसर्च पेपर, क्योंकि इंडिया में इस चीज में हम लोग बहुत पीछे हैं। तो अब AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस इसी का है, और यस इसमें हम बहुत पीछे हैं अभी। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट इट और चाइना बहुत आगे निकल गया है इस चीज में, ये लोग बहुत आगे हैं इस चीज में। तो हमको भी इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाला वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही है, उसी के थ्रू आगे की जितने भी इकोनॉमी, मिलिट्री, सोशल लाइफ, ये इस तरह से वो सस्टेन की जाएगी, वो चीज है। उसके बाद हमें जो अपनी जो ऑयल रिसोर्सेज है, ऑयल के ऊपर हमें अपनी जो डिपेंडेंसी है वो रिड्यूस करनी पड़ेगी। हमें जो अल्टरनेटिव सोर्सेज है नेचुरल के, जो रिन्यूएबल सोर्सेज है, उनको हमें डेवलप करना पड़ेगा। हम लोग कर रहे हैं बट अभी भी वो नाकाफी है, हमें उनको ज्यादा करना पड़ेगा। उसके अलावा अभी अगर आप मिलिट्री की बात करें तो हम जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो चाइना इंडिया बॉर्डर पर रोड्स हैं, ट्रेन्स हैं, आपकी ब्रिजेस हैं, तो ये जो कनेक्टिविटी हमें बहुत बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि चाइना की तरफ से बहुत नंबर 1 फर्स्ट क्लास का उधर का स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है, इंडिया को वो बढ़ाना पड़ेगा। और इसके अलावा सबसे बड़ा चारा क्या है कि जैसे चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, इंडिया को भी अपने आप को एक मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पे क्या करना पड़ेगा, अपने आप को बनाना पड़ेगा। और उसके लिए जरूरी है यहाँ पर कि उस तरह की पॉलिसीज हो, रेड टेपिज्म कम किया जाए, लॉन्ग टर्म पॉलिसी हो, जो कि अगर नेक्स्ट गवर्नमेंट आए ताकि वो भी इसको सस्टेन करे, तब जाके हम मैन्युफैक्चरिंग हब बनेंगे। तो इन्वेस्टर को एक बहुत लंबा टाइम चाहिए होता है, हमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए एटमॉस्फेयर देना पड़ता है, उसके लिए टाइम लगता है, वो 4-5 साल में नहीं बनता है, उसको 10-20 साल 30 साल चाहिए, जैसे चाइना कर रहा है 78 से अपने उसने कंटिन्यूस कर रखा है उसने। तो ये चीज है। ओके, और क्या कर सकते हैं इसके अलावा हम लोग, एक चीज और ये भी है कि जो हमारा चाइना का जो इंपोर्ट है, हमारा चाइना से जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं उसको भी हमें रिड्यूस करने की कोशिश करनी चाहिए। अभी भी इतना कुछ हम बोल रहे हैं कि चाइनीज प्रोडक्ट का बहिष्कार करें, लेकिन अगर आप देखेंगे चाइना से हमारा इंपोर्ट बढ़ा ही है। लॉकडाउन के पीरियड में हम तो मर्जी हल्ला करते रहे, चाइना से हमारा इंपोर्ट बढ़ा है। इसका मतलब जो बिजनेस है, बिजनेस इज एवरीथिंग, बिजनेस सभी प्रकार के जो हित है उनसे भी बड़ा है, ये से साबित हो रहा है। अपना मेक इन इंडिया प्रोग्राम, मेक इन इंडिया को अगर गवर्नमेंट मोमेंटम देगी गवर्नमेंट, तो वो आगे बढ़ेगा। उसी के थ्रू हम लोग मैन्युफैक्चरिंग अपना, इंडिया को अपना मैन्युफैक्चरिंग हब बना सकते हैं। बाकी हमें डिफेंस के मामले में डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम अटैक में जाएंगे तब हमें प्रॉब्लम है, लेकिन हम अपने आप को डिफेंड अच्छी तरह से कर सकते हैं। इंडियन आर्मी इज फेमस फॉर यूजिंग इट्स रिसोर्स। तो कहते हैं ना, गन मैटर नहीं करती है, गन के पीछे जो सोल्जर बैठा है वो मैटर करता है। सो वी हैव अ स्किल्ड फोर्स
armed force. So we don't have to afraid about this. India is not going to attack over anyone, but it can, yes. सर जैसे But आपने it बोला can- कि डिफेंस it's a के मामले difference. में हमें मतलब हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट अगर हम कितना डिफेंसिव खेल सकते हैं, क्योंकि अगर हम एक साइड से वॉर हो रही है, मान लेते हैं लद्दाख साइड से चाइना अटैक, तब तो हम डिफेंस कर पाएंगे क्योंकि हमारी आर्मी रेडी है उधर फाइट करने के लिए। बट अगर हम नेपाल से भी और बांग्लादेश से भी सब साइड से अगर वो अटैक करता है एट द सेम टाइम, आर वी रेडी फॉर दैट? Ma'am, it's an hypothetical scenario that you will get attacked from Nepal or Bangladesh. It's a hypothetical scenario, very much hypothetical scenario. और इसके बारे में मुझे नहीं लगता कोई जवाब देने की जरूरत है आपको। आपको अच्छे से मालूम है आपके एडवर्सरीज कहाँ से आएंगे और वो कौन से हैं। पाकिस्तान एंड चाइना, दे आर आवर मेन एडवर्सरी इन दिस केस। बाकी आप जिन देशों की बात करें वहां से नहीं आएगा कोई, आप इस चीज के बेहतर कर रही आप, ठीक है। वहां से हमारे पास सर्वेलेंस सिस्टम है चाइना ने अपने यहाँ पर एस्टैब्लिश किया है। सर ऐसा है ना कि अगर एक बार चाइना लड़ाई शुरू तो करे, यूएसए तो खुद ही बैठा हुआ है कि वो भी पीछे से हाथ साफ कर लेगा। नॉट इवन यूएसए, बहुत नुकसान होगा, बहुत नुकसान होगा। Just don't depend upon America. America is motivated by its own interest. आप इस चक्कर में मत रहो कि आपके साथ अमेरिका आएगा, कर सकता है नहीं आएगा अमेरिका। हाँ यस, अमेरिका कुछ नहीं है। अमेरिका इज अ बिजनेस कंट्री, उसको बिजनेस से मतलब है। तो आप ये उसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं, आप पूरे अपने बोलते हैं ना, यू कैन पुट ऑल ऑफ योर एग्स इन इट्स बास्केट ना, तो वो चीज है। और मगर सर रशिया जरूर आएगा, हाँ? रशिया जरूर आएगा। नहीं यार, यू कैन से ना, क्योंकि देखो ऐसा है, फुल फ्लेज वॉर नहीं होने वाला आजकल के सिनेरियो में। अभी आपने देखा है और क्या भी वॉर है, अब जितने भी न्यूक्लियर कंट्रीज है, न्यूक्लियर कंट्रीज के बीच में फुल फ्लेज वॉर नहीं होगा। जब फुल फ्लेज वॉर नहीं होगा, किसी का मतलब ही नहीं है। कोई अपने आप ये कह सकते हो कि वो किसी को तरीके से सपोर्ट कर सकता है, मटेरियल के थ्रू सपोर्ट कर सकता है, लेकिन कोई डायरेक्ट कूदेगा नहीं लड़ाई में। और इतनी बड़ी लड़ाई होने वाली नहीं है। एक थिएटर में लड़ाई हो सही सकती है, बात, वही एक सेक्टर में लड़ाई हो सकती है, जैसे कि कारगिल की टाइम सर वही तो आपने कि कोई इंसान क्यों लड़ाई करना चाहेगा जब उसको ये पता है कि उसका खुद ही का इतना ज्यादा नुकसान हो जाएगा। चाइना अगर जैसे- अटैक करेगा भी तो उसका तो खुद ही इतना लॉस होने वाला है, तो क्यों अटैक करेगा? नॉर्मल सी नहीं, हम बात लोग है। वो तो आर्मी में बस एक कम अपना भौकाल टाइट करने के लिए बीच बीच में थोड़ा सा वो इंडिया के साथ कर देता है। हाँ, एक हम लोग टर्म यूज करते हैं आर्मी में ना, हाईको बोलते हैं हम लोग, हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट। जैसा कि आपका कारगिल वॉर था, कारगिल वॉर वाज नॉट अ वॉर एक्चुअली, इट वाज हाईको, हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट। मतलब वॉर नहीं था फुल फ्लेज, वॉर से थोड़ा कम था, एक सेक्टर में लड़ा गया था। तो इस तरह के स्कर्मिश आप देख सकते हो सकता है, जैसे गलवान वैली में हुआ, इस तरह से हो सकता है। इस तरह के चांसेस हैं कि आप सबक सिखाने के लिए, जैसे कि वो उनके अपने आप चाइना के जो नेशनल पेपर हैं, जो ग्लोबल टाइम्स वगैरह हैं, उसमें थ्रेट्स आते हैं, वो किसका भी होता है, उनकी गवर्नमेंट का भी होता है। वो बोलते हैं हम तुमको सबक सिखाएंगे 1962, आप भूलो मत, दिस एंड दैट। तो वो हो सकता है उसके चक्कर में कुछ हो सकता है, लेकिन वो इतना फुल फ्लेज वॉर नहीं होगा, उसके लिए हम इतना नहीं बोल सकते, क्योंकि